Hello students, very good afternoon and welcome to Government Private Job Alerts. So students, as your Infosys exam is completed now, so now we have planned to start a preparation series for your interview now. Specifically, to be more precise, we are going to cover the interview preparation for your system engineer, and you can also have it in operation executives also, because after that this video is for technical questions, and after this video we are going to record one more video of HR interview. So this will be a gold mine to you students, because we have collected the most repeated questions from your Infosys interviews, which the students already told us in long time. Mean they have told us before a long time, and we have gathered those questions. We are talking about your 2022 January, Feb, March, and in your 21 also. So जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने हमें बताए थे, we have collected all those questions, and now we are going to launch the preparation series for your interview preparations. So what you have to do now, you have to watch the video till the end, and this is our logo crack interview in first attempt with us. So now we are going to discuss some of the questions, important questions. We guess 30 plus questions we have written. So we will be telling you about some of the questions, and these are the questions which are already asked, mean most asked questions in the interview questions. So if you guys will prepare these questions, अगर आपने ये questions अच्छे से revise कर लिए, then no one is going to stop you. कोई भी नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन होने के लिए, गेटिंग? बिकॉज जो भी हम आपको क्वेश्चंस अब देंगे, मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चंस आप अपने इंटरव्यू में एक्सपीरियंस कर सकते हो. आई एम चैलेंजिंग जो आपका अभी कमिंग इंटरव्यू होने वाला है, लाइक आपका पहले आपका 20 फेब को हुआ था एग्जाम इन्फोसिस का, उसके बाद आपका फिर 6 मार्च को हुआ था. आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फोसिस इंटरव्यू, सॉरी नॉट इंटरव्यू, रिटर्न एग्जाम. सो 6 मार्च को हुआ था. सो जो भी आपका अब इंटरव्यू होगा, आई गेस इनका हो चुका है काफियों का, कुछ बचे हैं बिकॉज देर आर एक्सेप्शंस, बिकॉज कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं इन्फोसिस टीसीएस जैसी जो मास हायरिंग कंपनीज होती हैं. So for those students only, also I would say that you have to wait for some time. You will get something like or selection or the rejection mail. Now students, talking about your 6 March, so exam has been completed. Today is 8 March, so we have planned कि आपके लिए हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज लेकर आते हैं, बिकॉज वी गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर थोड़ी हेल्प कीजिए. एंड फॉर मोर relevance, let me tell you, we have also started the Infosys preparation series also, and many students got help in that. So let me first show you for. So students, as you can see, this is the channel playlist of our channel, that is government private job alerts. So I request you, please help us to grow more. अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, आपको जहां भी हो सके प्लीज शेयर कीजिए ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस की. दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. So after that, now talking about, you can see there Wipro WILP preparation series, off campus interview exam preparation. So you can see we have 47 videos we have uploaded there. So काफी important videos हैं for those अगर आप आगे preparation करते हो तो we have a lot of videos like TCS NQT, off campus drives mean अगर आप recruitment search कर रहे हो तो that will be a really gold mine to you guys. After that, this is the Wipro WILP preparation series. You can also go through this, and I'll tell you how you have to reach. Firstly, what you have to do, you have to subscribe the channel, the red button which is on the right corner, and after that, after subscribing that, you have to go to the channel playlist and you have to search Infosys exam preparation or any other preparation or any other your playlist, so you can directly go through the channel. Now students, coming to the point which I told you, so now we are going about the interview questions. So now coming to the question, you can see there, now this is the most repeated questions list we have prepared. We have asked to the students also, students से पूछा है कि क्या क्या questions थे, and while asking from 20 to 25 students, this is the list we have created. So this will be really helpful to you. You have to watch the complete video first of all if you wanted to crack your interview, and after that you have to रिवाइज दीज क्वेश्चंस. देखिए क्वेश्चंस आपके बेसिक हैं, बट एक बार क्या होगा कि अगर आप रिवाइज कर लोगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू.
फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, सो यू कैन सी डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या क्या लेवल्स होते हैं, लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल, जो भी आपके लेवल्स होते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू इट। गूगल कर लीजिए, आपको पता है तो दैट इज डेफिनेटली, बट फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको रिवाइज करने हैं। आफ्टर दैट योर ऊप्स कॉन्सेप्ट, दिस इज इन वाइड रेंज नाउ। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितनों भी हमसे पूछा है, जितने भी पूछा है हमने बच्चों से, मोर देन यू कैन से 65% से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऊप्स कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट जो भी आपके इन जावा, एंड आफ्टर दैट दीज आर द पॉइंट्स जो भी आपके मेजर हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसी के पार्ट है। ये आपको गो थ्रू कंप्लीटली, यू हैव टू गो थ्रू दिस इज रियली हेल्पफुल टू यू। आफ्टर दैट व्हाट इज डीएलएल एंड ईएक्सी फाइल एक्सटेंशन, ये आप देख लीजिएगा एक बारी। आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस और नॉट द डिफरेंस, व्हाट इज एक्चुअली स्टैक एंड क्यू। यू हैव टू जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट ओनली, कि आपको यू मस्ट नो कि एक्चुअली होता क्या स्टैक एंड क्यू। After that, you can also revise those things also, first in first out and last out one point. After that, what is data structure? So थोड़ा सा आपको जो लॉजिक्स वगैरह हैं ये थोड़ा सी देख लीजिएगा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक आप देख सकते हैं, बिकॉज देखिए जो आपकी इंटेलिजेंस थी दैट हैज बीन चेक्ड इन द रिटन एग्जाम। एंड यू नो वन मोर थिंग, जो आपका रिटन एग्जाम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 80% इन सिलेक्शन एंड 20% इज योर इंटरव्यू। So agar you have done, if you have done good in written exam, for example, let's say out of 80% you got 68 or 70% marks in written exam, then you do not have to worry in the interview then, because आपका क्या है कि थोड़ा सा भी अगर आपने अच्छा कर दिया इंटरव्यू, then you are in getting. So how you are in, अपने we have told about the eligibility and your how you have to focus on the interview, because आपका main focus तो the thing you have done in the written exam, but the main point is now is your 20 points of your interview, so इस पर आपको focus करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML कमांड्स इन SQL, this is also a good question, DDL and DML commands, and after that your array concepts, योर नेक्स्ट इज योर पॉइंटर कंसेप्ट, जो भी आपके पॉइंटर कंसेप्ट है थोड़ा सा आप बेसिक डेफिनेशंस वगैरह और थोड़े से लॉजिक देख लीजिएगा। आफ्टर दैट हेडर फाइल, दिस इज द बेसिक। आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है एंड दीज क्वेश्चंस replicates your knowledge, getting. So after that your DBMS, database management system, एंड व्हाट इज SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए ये क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं दोनों, इसलिए हमने ये दोनों विद फुल फॉर्म आप लोगों के लिए रखे हैं। आफ्टर दैट वाटरफॉल मॉडल भी पूछा गया है काफी स्टूडेंट से, इसलिए हमने ये क्वेश्चन भी रखा हुआ है। व्हाट इज इंसर्शन शॉर्ट कॉल्ड, वाई इज इंसर्शन शॉर्ट कॉल्ड इंसर्शन, तो आप देख लीजिएगा इंसर्शन शॉर्ट में इंसर्शन क्यों बोलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा एक्चुअली में होते क्या है। आफ्टर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज इन पाइथन। बेसिकली देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी जो रेज्यूमे में प्रेफरेंस डालते हैं, दे यूजुअली गिव लाइक पाइथन। अगर वो पाइथन पे फोकस कर रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन द पाइथन, लाइक वो आपसे पूछे इन द प्रोजेक्ट आपने क्या किया था। लेट मी टेल यू अबाउट द रेज्यूमे ऑल्सो, वी हैवंट डिस्कस्ड बिकॉज वी वांट दैट हमें से HR जो आपके क्वेश्चंस लाएंगे हम उनमें डिस्कस करें। बट जब आपके जो आपका रेज्यूमे है उसमें आपको जब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन टेक्निकल क्वेश्चंस इफ यू नोज पाइथन, C++, जावा, एनीथिंग, तो आपको क्या करना है कि उसी पॉइंट पर फोकस करना है, सो दैट इंटरव्यूअर विल आस्क यू अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपने पाइथन किया हुआ है, यू नो इन पाइथन, तो आपको लाइक आप अपने इंटरव्यू में रेज्यूमे में जो भी आपने लिखा है उसके बाद कुछ आपको हिंट आउट करना है कि यस आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज स्पेसिफिकली। सो वो क्या होगा कि एक फोकस हो जाएगा आपके लिए कि हाँ ये इन्होंने पाइथन पे थोड़ी नॉलेज है, या उन्हें पॉइंट मिल जाएगा कि हमें पाइथन पे कुछ क्वेश्चंस पॉइंट आउट करने हैं आप लोगों से, गेटिंग। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज हाउ ओवरलोडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ओवरराइडिंग, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, काफी बारी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। After that, what is the difference between linked list and array? This is also a question. You have to mark this question. After that, coming to the next question, tell us the difference between C and embedded C. Students, ये question भी काफी बारी पूछा गया है, repeated question समझिए इसे। C और embedded C में क्या difference है आपका? After that, write a program to decide whether the input number is a perfect number or not. ये भी आपका देखिए पूछ सकते हैं, और अगर कोडिंग ना भी करवाए तो लॉजिक भी आपसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसे एक बार देख लीजिएगा बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। आफ्टर दैट सेम क्वेश्चन फॉर प्राइम नंबर, ये भी काफी बार पूछा गया है कि आपका प्राइम नंबर है या नहीं है।
एंड डिफरेंट गिव डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ये आपको मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पे फोकस करना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आफ्टर दैट व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी देखना है। And after that, what are the similarities difference between C and C++? Mean what are the similarities in C and C++, and what are the differences between C and C++? So there are two questions in a particular question. Getting? After that, coming to the 24th, so this is what is preprocessors, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। And one more thing, what is header files, ये भी आपको थोड़ी सी देखनी है header files के बारे में। Getting? After that, what is the difference between care and varchar in DBMS? केयर और वेयर केयर में क्या आपका डिफरेंस होता है, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बारी। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, दिस इज आल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वी हैव पुट दिस क्वेश्चन। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द एडहॉक नेटवर्क, सो दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन, आप एक बारी से जस्ट आप रिमाइंड करने के लिए एक बारी गूगल कर लीजिएगा, वही आपके लिए काफी है। एंड आफ्टर दैट, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, and the next is write a program to swap two numbers, this is also a good question। and after that, your bubble sort algorithm, as I told you, bubble sort, insertion sort, आपके जितने भी शॉर्ट है इनको एक बार देख भी लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज नल पॉइंटर, एंड दिस इज आल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन, सो ये लास्ट में हमें ध्यान आया एंड वी हैव पुट दिस क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड 31 टॉप योर टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखिए, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर कर लिए, आई गेस आपको कोई इशू ही नहीं होगा टेक्निकल इंटरव्यू में। आई कैन गारंटी दिस, आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी से पूछे जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, द रेज्यूमे, आई टोल्ड यू, रेज्यूमे में आपको जो भी प्रोजेक्ट है, टेक्निकल जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपको उसमें फोकस करना है, जो भी आपने किया है, क्या आपने सॉफ्टवेयर यूज किया है। आई गेस वी हैव नॉट वी हैव फॉरगॉटन दैट पॉइंट, लेट मी शो यू, वी हैव मेंशन्ड दीज थिंग्स। So you can see there students, questions from your resume, write everything thinking thrice, ये हमने twice नहीं thrice बोला है, क्योंकि जो भी आप रेज्यूमे में लिख रहे हो वो आपकी रिफ्लेक्शन शो करेगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, किस टाइप के आप कैंडिडेट हो। बिकॉज आप कुछ भी ऐसे ही लिख रहे हो और आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो एवरीथिंग इन वेन। सो नाउ सी, आपका जैसे रेज्यूमे में आपका जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क है, तो व्हाट यू हैव टू डू, योर रोल, आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोगों ने यूज किया था, उसके बाद डेली लाइफ एक्सपीरियंस में कुछ एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की या उस प्रोजेक्ट की, एंड द लास्ट इज व्हाई टू ज्वाइन इन्फोसिस। सो ये एचआर क्वेश्चन थे, बट जो आपका रेज्यूमे का क्वेश्चन था ये आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बेस्ड था, तो इस पर भी आपको फोकस करना है, दैट इज वाई हमने आपको शो किया है। आफ्टर दैट हम एचआर के लिए भी वीडियो लेकर आ रहे हैं जस्ट, सो आपको ये पहले गो थ्रू कर लीजिए, जितने भी हमने क्वेश्चन आपको बोले हैं इन्हें स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल कीजिए, जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिले उन्हें लिखिए, पॉइंट हो सके तो पॉइंट बना के लिखिए, बट दीज विल बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइज। सो आफ्टर दैट हम एचआर की वीडियो भी लेकर आएंगे, बिकॉज हमने सोचा कि टीआर और एचआर दोनों एक साथ लेकर आए तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स में, दैट इज वाई हमने ये डिफरेंट डिफरेंट यूज किया है। सो नाउ इसके बाद हम एचआर की वीडियो लेकर आएंगे, एंड चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, बिकॉज अभी जो भी आपकी जॉब रिक्रूटमेंट्स है नई नई हम इसी चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, प्लस जो भी आपकी प्रिपरेशन सीरीज है उसमें भी हम आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।